मोबाइल एडिक्शन से लिटरली आपके टाइम को बेच रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या असर पड़ता है? आज के ज़माने में 14, 12 एंड इवन 7 साल के बच्चे के हाथ में भी एक पर्सनल फोन है। Even those people who are below the poverty line, they have a smartphone in their hand, but उनके घर में कपड़े नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बिहेवियर सबसे मेजर इशू है, नहीं। Hi guys, I'm Dr. Yokesh from GB Band Mamsi and मैं basically एक upper middle class family से हूँ and my parents could very well afford a smartphone for me because I badly wanted one when I was in class 8. But my parents were super clear that I am not going to get a phone till I reach the age of 18. पर आज के ज़माने में 14, 12 and even 7 साल के बच्चे के हाथ में भी एक पर्सनल फोन है। Now let me tell you a simple story. 2019 में लखनऊ में अर्पित नाम का एक लड़का जो 16 साल का था who was preparing for his NEET exam and रात में 3 बजे his mother came and snatched his phone from him saying कि तू कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, all you use is just the phone. उस बंदे के अंदर इतना frustration हुआ, he went into his father's room, took his father's licensed revolver and shot his own mother down cold blooded. सिर्फ ये नहीं, एक 16 साल का लड़का जो MPL करके एक फोन गेम में इतना एडिक्टेड था, उनकी मम्मी का एंटायर लाइफ सेविंग्स लिटरली 30,000 पूरे के पूरे वॉश आउट कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग में ये था कि 30,000 डाल के वो लिटरली उसको डबल कर सकता था, बट इन रियलिटी ही लॉस्ट everything. Porn consumption मोबाइल एडिक्शन का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है that a boy in Rajasthan entered a woman's house, tried to remove her clothes, and when that woman panicked, that boy stabbed her to death. Now, before we dive into the history of smartphones, let's say what world's best smartphone company का CEO has to say about smartphones. अब स्टीव ने खुद कहा कि उन्होंने आईफोन ने इसलिए बनाया to make people's life easier and not to make people addicted. एंड बिल गेट्स द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उनके घर में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि दैट पीपल आर नॉट अलाउड टू यूज फोन ड्यूरिंग द डिनर टाइम एंड चिल्ड्रंस कुडंट इवन टच फोन्स अंटिल दे वर 14. दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन आया 1994 में, IBM, जिसके अंदर बस 2 फीचर्स था, emails and calendars, and this was just meant to make our lives easier. By early 2000, brands like Nokia and BlackBerry started to bring in more features जिससे लोग फोन से ज्यादा कनेक्टेड होने लगे. फिर 2007 में आया iPhone. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. No buttons, no limits. And this was the beginning era of smartphones. और 2008 में the App Store launched. This was followed by 3G and then 4G. 2014 तक more than 20% people owned a smartphone and by 2024 more than 60% had a smartphone in their hand. पर इसी टाइम पे कुछ और भी चेंज हुआ, which is हमारा ब्रेन. पहले समझते हैं कि ये एडिक्शन होता क्या है. This is a condition when a person is mentally and physically dependent upon something. But are you actually addicted to mobile phones? Now let me give you a simple challenge. If I tell you to stop using your phone for 12 hours, आप नहीं कर पाओगे. 12 hours तो छोड़ो, if I tell you to stop using your phone for 6 hours, आप definitely नहीं कर पाओगे and I can guarantee. अब यहाँ से let us understand the stages of mobile addiction. अब phone addiction अचानक से नहीं होता है. It gradually happens in steps just like any disease. Stage 1, आप सोचते हो मैं बस 5 मिनट के लिए फोन यूज करूंगा, but you end up scrolling for 10 minutes, 15 minutes and even 20 minutes. Stage 2, आप फोन को अनलॉक करते हो, लॉक करते हो, अनलॉक करते हो, लॉक करते हो विदाउट एनी पर्पस. स्टेज 3, आपको नोटिफिकेशन की आवाज आने लगेगी, बट व्हेन यू ओपन योर फोन there wouldn't be any notifications, but you would still feel like कुछ ना कुछ तो आया है. Stage 4, आप फोन यूज कर करके इतना थक जाते हो, but you still feel like using the phone because you don't feel like doing anything else. Stage 5, reality check. मतलब आपको खुद पता चल रहा है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है. You know you're addicted and you start to feel more guilty, but you still don't have control over yourself. अब इस मोबाइल एडिक्शन से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या असर पड़ता है? 15-20 साल पहले ह्यूमंस के अंदर जो इंटरेक्शन था वो काफी अलग था. डिनर के टाइम में लोग बात करते थे,
फैमिली फंक्शंस में लोग इंटरेक्ट करते थे, फोटोज नहीं खींचते थे, और आज की डेट में प्यार, मोहब्बत सब कुछ सिर्फ फोन में ही होता है। मतलब आप सोचो, एक जमाने में लोग लेटर्स लिखते थे। लाइक आई स्टिल रिमेंबर माय मदर वाज टेलिंग दैट माय डैड रोट अ लेटर फॉर 5 पेजेस एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग डिफरेंट। पीपल यूज्ड टू शो लव इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, पर आज के जमाने में रीपोस्टिंग अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट, मेंटेनिंग स्नैप स्ट्रीक्स इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हो गया डिजिटल का प्यार। सोचो, आप मोबाइल एडिक्शन से लिटरली आपके टाइम को बेच रहे हो। जस्ट इमेजिन, इंस्टाग्राम में एक लड़की नाच रही है, आप उनकी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे हो, आई मीन कुछ भी कमेंट कर रहे हो, बट हुज टाइम आर यू वेस्टिंग? स्नैपचैट में मेंटेनिंग स्ट्रीक्स फील्स एज इंपॉर्टेंट एज ईटिंग फूड। अब मोबाइल एडिक्शन से आपकी हेल्थ में क्या असर पड़ता है? सबसे पहले आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बदलता है। हमारे बॉडी में एक सर्कैडियन रिदम होता है व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ अ ब्रेन। सो दोपहर के टाइम में आवर बॉडी सेंसेस लाइट एंड इट कीप्स अस अवेक, बट रात के टाइम में इट सेंसेस डार्कनेस एंड इट स्टार्ट्स टू सेक्रीट मेलाटोनिन व्हिच पुट्स अस टू स्लीप। पर जब आप एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज करते हो, द ब्लू लाइट कमिंग फ्रॉम द स्मार्टफोन inhibits the melatonin secretion and ये फैक्ट आपको इंसोम्निया कॉज कर सकता है। अब ये लॉन्ग टर्म में आपके ब्रेन में बहुत स्ट्रक्चरल एंड केमिकल चेंजेस ला सकता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस में इट कैन डिक्रीज द ग्रे मैटर इन योर ब्रेन, जो बेसिकली आपकी अटेंशन और इमोशन पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ ये नहीं, आपकी ब्रेन में जो हार्मोन्स है लाइक गाबा, इसको बढ़ा देता है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से आप ज्यादा एंग्शियस फील करते हो। एंड जब आप मोबाइल फोन्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, आपकी आई बॉल्स लिटरली एलोंगेट हो जाता है, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड मायोपिया। एंड ये हमारे पास डेटा भी है कि 1999 में सिर्फ 4.5% किड्स हैड मायोपिया एंड 2019 में अप टू 22% ऑफ द चिल्ड्रन हैव मायोपिया। एंड साइकोलॉजिकली ये हमारे अटेंशन स्पैन को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किताब को उठा लो, हाउ लॉन्ग आर यू एक्चुअली एबल टू रीड इट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? आई एम प्रीटी श्योर फॉर मोस्ट ऑफ देम द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी फॉर मोर देन 30 मिनट्स। एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एजुकेशन में। आई हैव बीन अ टॉपर, an average student and a below average student, and I can tell for a fact that ये सारे बच्चों में एक differentiating factor है which is distractions, and ये distractions का major source होता है mobile phones। and मैं ये चीज assurity से कह सकता हूँ कि when I stopped using my mobile phones, I felt more focused, कॉन्सेंट्रेटेड एंड मेरा मेमोरी पावर भी काफी इंप्रूव हुआ। एंड ये मोबाइल एडिक्शन सिर्फ आपको नहीं, पर देश में लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है। अब्दुल कलाम ने कहा दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, पर एक सेकेंड, टेक अ लुक एट द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। अगर आपको लगता है कि ये बिहेवियर सबसे मेजर इशू है, नहीं। 2022 में जापान में एक स्टडी हुआ जिसमें से देखा गया कि बच्चे जिसकी 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम है आर हैविंग मोर चांसेस ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब ऐसा एक कंडीशन है जिसमें बच्चे के कम्युनिकेशन, वोकल स्किल्स सब कुछ कम हो जाता है। और 2024 में इंडियन पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट गिव अ न्यू टर्म नोन एज वर्चुअल ऑटिज्म, एंड ये कंडीशन स्पेसिफिकली देखा जाता है इन दोज किड्स हु यूज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। सिर्फ बच्चे नहीं, बट adults have also become a part of this addiction. For example, earlier time पे parents used to spend more time with their kids, go out and have a proper family connection. पर आज के ज़माने में parents spend most of their time in their phone without talking to their own children, and this has reached to such a point that parents are giving phones to their own children so that they remain silent. ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रिविलेज लोगों में नहीं है, बट इवन दोज पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, दे हैव अ स्मार्टफोन इन देयर हैंड, बट उनके घर में कपड़े नहीं है, उनके घर में खाना नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर। ये एडिक्शन इतना बड़ा बन चुका है दैट मोबाइल फोन्स हैव बिकम द नीड ऑफ द आवर, एंड डेटा ये कहता है दैट मोर देन 70% ऑफ द आईफोन्स हैव बीन बॉट थ्रू EMI, एंड पूरे देश में मोर देन 30% ऑफ द फोन्स हैव बीन परचेज्ड थ्रू EMIs। अब इस मोबाइल एडिक्शन के लिए हमारा गवर्नमेंट ने क्या करा? चलो, दे बैंड पॉर्न, बट अभी भी हमको पता है दैट पॉर्न इज स्टिल एक्सेसिबल। ऑलराइट, ये उनका गलती नहीं है, बट गैम्बलिंग, क्या ये सच में बैंड है? आई गेस रिसेंटली देयर वाज अ ऐप व्हिच इज बैंड बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग, पर हाई कोर्ट ने खुद कहा दैट ये कोई गैम्बलिंग ऐप नहीं है, बट इट इज अ स्ट्रेटेजिक गेम एंड दे हैव एक्चुअली लीगलाइज्ड इट। देखो, रियलिटी ये है कि स्मार्टफोन्स हैव चेंज्ड द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल आवर लाइव्स। अर्पित के लाइफ में he could have used the smartphone for preparing for his NEET exam,
cracked NEET and actually became a doctor. But he became addicted and he killed his own mother. उसके बाद जो बंदा 30,000 इन्वेस्ट किया एक गेमिंग ऐप के ऊपर, he could have invested that over stocks. He could have multiplied it and he could have even become richer. So मेरा कहने का ये है कि एक स्मार्टफोन is like a knife. In the right hands it can do wonders, but in the wrong hands it can stab you in the back.